Hello, my friends. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dipanjali Arora. So today I'm going to do a pick a card reading about how your coming 48 hours are going to be. So whatever details Spirit wants to give us about your coming 48 hours, that's what I'm going to focus on. Uh, so there are four different piles. This is pile number one. This is pile number one, pile number two, pile number three, and pile number four. So, but do remember that this reading is also timeless. So whenever you see this reading, the time frame from the time that you have seen the reading, it's going to be only 48 hours. That is 2 days, right? It's not longer than that. So that's the energy check-in that we are doing for 48 hours. So now let's choose the pile. So for that, first, please close your eyes. Take a couple of deep breaths. Let your energy settle down. Focus on coming 48 hours. What messages Spirit wants to give you. When you're ready, open your eyes. And wherever your eyes fall first, that is your pile. That's your reading. Do not overthink. Don't try to second guess yourself. Right? So the timestamp for this reading are mentioned in the description below, and I am going to do this reading both in Hindi and English. So you can also choose your language preference. And for all those who want a personal consultation done, you can write to me on my email ID, which is mentioned in the description. And also I've started with my Instagram, and the details of that are also mentioned there in the description. And I do daily readings on my Instagram. So do check that out as well, right? Now let's begin with pile number one. So for all those who have chosen pile number one and this beautiful cherub, this is your reading. So let's figure out how the coming 48 hours are going to be for you, right? Let's see what messages Spirit wants to give us. So your first card is strategy. Okay, planning time. And the next card is Page of Swords. All right. Then let me see what the cards are given to us by the Lenormand. You have chosen the clouds. All right. Then we have the whip. And we have the clock tower. Okay. So all those who have chosen the group number one are busy planning something, you're busy strategizing things, and some important decisions are on the cards. And for that, you have been, or you are already collecting the information, or you have been collecting a lot of information with the Page of Swords energy, and you've been figuring out whys and where's, figuring out all the details. And you are actually thinking about things very logically. You are going to be very logical about your decisions, how you are arriving at a particular conclusion. It's going to be very strategic, because we do have the card of strategy, right? But but what I see in the Lenormand, I see a lot of confusion. So maybe you have been going through this confusion, or you would be in the beginning of, we are talking about 48 hours. So initially you might be very confused or not very clear about which way to go or what is the right path for you. There could be a lot of confusion. There could be a lot of arguments and a lot of dissent between the people. So it could be that you are dealing with others and there is a lot of disharmony there, lack of, you're not able to come to a conclusion, and people are not able to come together and think towards a particular goal. So that's what this whip talks about. And it could also be the confusion in our own mind, because there is a cloud energy there, right? So you are moving from clouds, and then the next card is the whip. But this confusion has been there for some time. It's kind of a repeat thing which is happening, and you want to break the loop. So that's the desire. Now, how do you break the loop? How do you come out of those confusions? And then the arguments or fights happen with the whip energy, then it's also very passionate. People are really believe in whatever they're talking about. Whether it is right or wrong doesn't matter, but there's a lot of passion in our arguments. So it can be really aggressive, right? This is an aggressive card. So I do feel the solution is also presented to us by the Lenormand, by the clock tower. So when this card comes, it actually is talking about to distance yourself from things. Because when we climb the tower,
you get a bird's eye view of things around you, and that's when you might, and that shows you the way out sometimes as well, right? We need to see a thing from a different perspective, from a higher ground. So you need to come to a higher ground, and that's what you guys are going to be doing. You are going to change your perspective and become extremely logical, because the page is a very is an air energy, right? So, and it's about being logical, it's about being intelligent about things and not being too emotional. So this is the time frame when you will not be thinking from your heart, but mostly thinking from your mind, and that is the need of the hour. It's not something wrong, that's the need of the hour. And you will, and when you put your problems into perspective, and when you start approaching it from a step-by-step process, which you will understand what those steps have to be, that's when the solutions will come, and that's when you'll be able to decide for you better. So you're doing a lot of thinking during this time, my dear group number 1, and there's a lot of planning going on. And while that process is going on, there's a lot of ifs and buts which are happening, which happens with strategy, right? It need not be always smooth running. Everybody has their own two pieces to give us, and their own opinions. So that's what's happening for you in these coming 48 hours. And this mostly looks like your work area, but it could be something happening in your home front as well, right? But there is a planning required. You need to figure your way around, and you need to focus on long term while you're figuring the way around. So this is it. This is what I see. And with the page, I also feel that that planning could also be to do with a child, maybe the future of your child, or where the person, this young person is going to maybe study further or go for some kind of a job or whatever. It can be related, not for everybody, but for some of you. That also maybe the child is confused and it needs to be planned. So there's a lot of thinking which is going on in the coming 48 hours for you guys. So this is it. This is what I have for you, my dear group number 1. I hope the reading resonated. Do let me know in the comment section, and remember to like, share, and subscribe to my channel. And if you want a personal consultation done, then my details are mentioned in the description below. Now let's move on to group number 2. Hi guys, all those who chose this beautiful fairy, this is group number 2. So we are going to figure out how the coming 48 hours are going to be for you guys, what important information or messages the spirit wants to give you. Now let's begin. So we have, wow, we have the happy family card. So it's you're chilling, you're having a good time, group number 2. And the next card is King of Cups. So you are definitely chilling. Spending time with your loved ones and with your family. That's what you're doing in the coming 48 hours. And then the next card, with the Lenormand, I have the sickle, the key, and the bear. So yes, as I said, you are spending a good amount of time with your family, and maybe you guys are planning a short vacation. You're going out maybe on a beach side, having, just putting your hair down and just relaxing. That's the feel of this card, the beautiful rainbow and the beach, and you see the mother, father, and the 2 kids. So yes, it's a beautiful, happy family time, which is very relaxing and maybe much needed, right? And it could, I do get a feeling that you guys might be also going on a small to short trip from wherever it is that you're living, because I'm sure not everybody lives near the beach, right? And then we also have the King of Cups. Again, it's a very family-oriented card. It's the feeling of somebody very mature, somebody who is emotionally very strong and is a good counselor, and is someone you go to with all your problems. This could be your go-to person. It could be your father, it could be your grandfather, it could also be your mother. This could also represent feminine energy, but since it's called King of Cups and not Queen, I would see it as a masculine energy. So yeah, so this could be a person to whom you go to, and you discuss what you not need to talk about, and you unburden yourself. Now why I'm saying unburden, because we do have this card here called the sickle. So this is about removing things which are not working, which are there to be
harvested. So it's about to remove them from the ground, uproot them. So there's this feeling of cutting off crap, cutting off stuff which is lived its utility or its usage. So it could be when you guys are coming together as a family, you guys are discussing about things which were maybe unsaid and it was needed to be brought to the surface. It could be certain emotional issues, or it could be some things which somebody did you didn't like, or you didn't know how to handle a particular situation, but it's to do with the family. It's to do with your close-knit, intimate circle, and you're finding the key for it. Look, the next card is finding the key. So you have found your way. You found your way around, and after the key we have the bear. You have the way to this big bear's heart. You found the key. You've understood how to handle a situation which was maybe looking difficult or overbearing, because the bear is an overbearing energy as well, but this is about growth as well. It's about prosperity as well. And it could be that you have found the key to handle this situation or this person who could have been looking overbearing or difficult or out of reach, but they are not that way, right? They are more cuddly than you thought, but you just found your way out. So it's basically coming together of the family and sorting those issues, and mostly spending a good time. That is what I see for group number 2. So you are at a very emotionally happy space, is how I will sum up your reading, and finding your way around for things which have been bothering you, which is wonderful, and it's a good time for growth, right? Self-growth and self-knowledge and self-learning. So this is it. This is what I have for you, my dear group number 2. I hope that you like the reading. Do remember to like, share, and subscribe to my channel. And if you want a personal consultation done, then my details are mentioned in the description below. Thank you for your time. Let's move on to group number 3. Hello, group number 3. All those who chose this beautiful cherub, this is your reading. So today we are figuring out what are the energies, what energies are going to be in the coming 48 hours, what message spirit wants to give you for that time frame, right? So let's begin. We have the thinking man. Okay. We have strength. And now we have the grave. In the Lenormand deck, we have the grave, the stars, and the ring. All right. A time of very important decisions for you, I would say, my dear group number 3. And I do see a lot of healing happening here, a lot of help coming your way. And if you have been struggling with an issue for a long time, then you are finding solutions for it. Because with the thinking man, the help comes from, this could be a man, literally a man coming, and it could be a family person, it could be a family friend, or it could be a friend, or it could be anybody who is coming to you and giving you solutions for the problems or the challenges that you feel that you have been facing and you have been stumped by it, right? So this person is giving you a lot of clarity. And this person looks like he's wearing the attire of a magician, because he looks like one and is holding a crystal in his hand. So whenever I see this card, it feels like a magician to me, and it feels like in the traditional tarot, that is what I mean. And it feels like somehow you meet somebody and the problems, you find your solutions as if by magic. If you understand that they were not as difficult as you made them out to be in your own head. And when that happens, we also have a card of strength. So you are in your own power. You are in your strength. There's a lot of increase in your self-worth and confidence, because this woman who is holding petting the lion, she's actually petting the lion. She's very confident. You can't be doing this if you're not sure of yourself. So there is a lot of surety coming towards you in these 48 hours, my dear group number 3. A lot of surety and a lot of inner strength coming towards you. And it's coming towards you because there's a lot of support around you, because I see it from the thinking man and I see it also from the star energy. So what's happening here is, now let's see what the Lenormand has to say. We have the card, the grave. So something has ended in your lives, because
a grave cannot be depicted by any other ways. When people die or things end, that's when it goes to the grave, right? So it does not mean that someone has died per se. What it means, a situation or a relationship or anything, something which had to go has ended. Now there is a new hope and there is a renewal. Star energy is pretty powerful. It's about hope, healing, renewal. So those kind of energies are coming towards you. You're getting your divine messages from the divine, because stars are high up in the sky. So you're getting your inspiration, you're getting your ideas, and you're actually feeling very hopeful. So maybe prior to these 48 hours, you were feeling a little hopeless and lost, but now you're coming into your own strength and you're feeling extremely hopeful, and you're able to let go of those ending. And now what is coming towards you is the ring. This is the card of marriage and commitment. Now I don't mean that actually you guys are, maybe actually you guys are going to get married in the near future, and things will be put in place in these coming 48 hours. That can also literally happen. But when I see the ring card here with the star energy right next to it, it talks to me about long-term commitment. So whatever you are doing or you're deciding upon, it's a long-term change. You're committing. Maybe you're deciding, all right, for yourself, that I will start exercising daily. It could be that kind of a commitment which is happening long term. So you're ending your lethargy. You're getting inspired to do those exercises, and you are going to continue to do it for a long time. So that's the kind of commitment this is also talking about. So I'm just giving you it to you as an example, because when the ring comes, I mean, it's not just always marriage. Not many of us, of you might get married in the coming 48 hours, or maybe you will. But even marriage is a long-term commitment. So overall, we see it as a long-term commitment card. So yeah, so there is a lot of support coming your way, my dear group number 3. And you are very hopeful about things to change, and your solar plexus energy is pretty strong, and you're full of confidence and self-worth. So that's what I see is happening for you in the coming 48 hours, which is wonderful. So good luck to you, my dear group number 3. Do let me know in the comments how you found the reading. And remember to like, share, and subscribe to my channel. And if you want a personal consultation done, then my details are mentioned in the description below. Now let's move on to group number 4. So all those who have chosen this beautiful pink fairy, group number 4, this is your reading. So let's see what Spirit has in store for you in coming 48 hours, what changes or what energy is going to be predominant, right? So let's see. We have the 7th chakra, Archangel Uriel, very powerful card. Wow, group number 4. And the tarot, we have the Star. Okay, so you guys are getting inspired. All right, now let's see what the Lenormand has to give us. Is the Fish, the Child, and the Lilies. Okay, so let's begin with this card, which is the 7th chakra. So 7th chakra is above your forehead, above your head, and that's the Sahasrar, which we call the Sahasrar in Hindi. And it is a very powerful 7th chakra energy placement, which means whenever that chakra gets activated, it simply means your connection with the divine. Getting your inputs directly from high above. And we also have the star right next to it. So you are in a very powerful, spiritually, you're going to feel very powerful, renewed, and rejuvenated. It's also your instincts, your gut instincts, your psychic powers are also going to flow very freely through you. You will have a sense of knowing in the coming 48 hours of what it is that you need to go and which direction you need to take. There is an inner compass we all have, but most of us don't look at it. Most of us don't follow it. But for you guys, you will know what's to be done, because you have the 7th chakra activated and you also have the star to support it. So there's a lot of inspiration coming towards you. There's a lot of, it's a pile of all those who are actually very intuitive and psychic people.
Yeah, or if you don't follow these terminologies, then you could be somebody who is very meditative, who has a lot of faith in the divine. So that faith always shows you the way, right? So that faith is very powerful. That's what I see for group number 4, which is very, very powerful and beautiful energy here. Now let's see what the Lenormand is telling us. We have the fish, the child, and the lilies. So it could be on the face of it, it could be some important decisions, financial decisions, or major decisions you guys are making for a child or for somebody who's young in the family, and these are going to have long-term implications. And lily is a good card, so it's going to end well. It's not that it's difficult, but that will resonate with only some of you. And for the other part, I do feel a lot of important financial decisions to be made, and a lot of abundance. Fish is the card of abundance in the Lenormand. It talks about money flowing towards you, and money flowing beautifully, and not just money. If we look at a broader perspective, we see abundance flowing towards you. And if it has happened that you have felt that it's not flowing as easily, then the trickle has started with the child. Something new, some new beginning is happening, and beginning is happening in your financial flow or in your financial freedom. So you're beginning with that energy, and this thing will grow and become very stable, and it'll be there with you for long. So that's what the lily chart suggests. So it's going to be there, and it's long term. So this flow is long term, and it's beautiful. And also you guys are very much in touch with your own instinct and with your own intuition, because this is my intuitive pile, right? So this is it. This is what I see for you guys, group number 4. I hope the reading resonated. Do let me know in the comment section. And remember to like, share, and subscribe to my channel. And if you want a personal consultation done, then my details are mentioned in the description below. Thank you for your time. Bye for now. Hello friends, मैं हूँ दीपांजलि अरोरा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे हमारे कैसे बीतेंगे। इस दौरान कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज आ सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है, हमारा मेंटल और इमोशनल सिचुएशन क्या हो सकता है। तो जो भी डिटेल हमें स्पिरिट देना चाहती है, हम उस पर गौर करेंगे। पर जब भी आप ये वीडियो देखें, आपको आने वाले 48 आवर्स 48 घंटे तक का ही टाइम फ्रेम है इस रीडिंग का, ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट? तो ये रीडिंग में दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में करने वाली हूँ। तो जो भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस हो, आप प्लीज उस पर क्लिक कर सकते हैं टाइमलाइंस में जाके। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिले उस जैसे आपने आज देखी है, तो आज से आने वाले 2 दिन 48 घंटे जब भी आप देखें, इसका टाइम फ्रेम उतना ही रहेगा, राइट? तो अब हमारे पास 4 डिफरेंट पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। सो आप अपने इंट्यूशन से चूज कीजिए पाइल, और या तो आपको जो फेरी दिख रही है आपको वो पसंद है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 का ब्यूटीफुल चेरुब। ये है पाइल नंबर 2, ग्रीन कलर की फेरी है। ये पाइल नंबर 3, व्हाइट कलर के चेरुब है। और ये है पाइल नंबर 4, ये है पिंक कलर की फेरी। सो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, अपने मन और दिमाग को शांत कीजिए, और अपने आने वाले 48 घंटों पर फोकस कीजिए कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली हैं। अपनी आंखें खोलिए, और जहां भी आपकी नजर पड़ रही है पहले, वो आपकी पाइल है। ज्यादा सोचिएगा नहीं, इमीडिएटली आप चूज कर सकते हैं। जो आपको फर्स्ट गो में स्ट्राइक कर रही हो वही आपकी फाइल है, ठीक है? तो इसके जो टाइमलाइंस है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और टाइमलाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों के भी मेंशन रहेंगे। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन करानी हो तो मेरे डिटेल्स भी मेंशन है, और मेरा इंस्टाग्राम का डिटेल्स भी वहां पे है, तो प्लीज उसे भी चेकआउट कीजिए। वहां पे भी डेली रीडिंग्स में दे रही हूँ, राइट? तो लेट्स बिगिन। अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से।
जिसने भी ये ब्यूटीफुल चेरब चूज किया है, फाइल नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम आज ये पता कर रहे हैं कि आने वाले 48 घंटों में आपके लाइफ में कौन से मेजर थीम्स प्ले आउट करेंगे, राइट? क्या क्या होने वाला है बेसिकली, अच्छा बुरा या कुछ भी नहीं, जैसे भी दिखेगा, जो भी हमें कार्ड्स बताना चाहते हैं। तो पहले एनर्जी ऑरेकल से हमारा कार्ड निकला है स्ट्रैटेजी। बहुत बिजी हैं आप लोग, कुछ तो मेजर कर रहे हैं। Then the tarot card is page of swords. Okay. Strategy and page of swords. And अब ये लेनोमार्ट कार्ड है, तो इसमें देखते हैं। पहले हमारे पास आया है क्लाउड्स, फिर है द विप, और फाइनली आया है द टावर। ऑल राइट, so let me place it जहां आपको दिखे कार्ड सारे। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ चीजें हैं जो साफ से आपको दिखाई नहीं दे शायद इनिशियली। इनिशियली मतलब शुरू में, हम जब सिर्फ 48 घंटे या 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अभी कुछ मेन डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के, और वो काम से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है एनर्जी ऑरेकल का स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स कि आपको कुछ प्लान करना है, और आपको कुछ बहुत ही बारीकी से किसी चीज को जज करना है। हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे हो, काम को रिलेटेड हो, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम किसी के साथ पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट? ये एक एग्जाम्पल है। और ये आपके पर्सनल स्पेस पे भी यूज हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, सपोज कीजिए कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, तो अब कहाँ कहाँ वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कब वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसका पैसा कितना जाएगा, वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा। तो उस सारी प्लानिंग, वो जो प्लानिंग का कार्ड है वो स्ट्रैटेजी है। तो सोचना और प्लान करना, ये कार्ड दर्शा रहा है। बट मुझे ये नीचे जो कार्ड पड़ा है क्लाउड, उससे ये भी लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है चीजों को लेके। आपको हो सकता है कि आपको लगे ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजें हैंडल कैसे होंगी, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन है आपके पास। विद द पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी इंफॉर्मेशन की है और इंटेलिजेंस की है। सो आप लोगों ने जिसने भी एक फाइल चूज किया है, जिस भी चीज पे आपका इस वक्त फोकस है, आप उसके बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। उसके बारे में हर जगह से इंफॉर्मेशन और न्यूज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ वो आप कर रहे थे अभी तक, जैसे मैंने बताया आपको, शायद हायर स्टडीज के लिए आप स्टूडेंट्स है, कहीं जाना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस में कुछ करना चाह रहे हैं, या फैमिली में कोई मेजर चेंज हो रहा है जिसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। सिर्फ फैमिली में, अगर घर के अंदर अगर हमें काम करवाना है, राइट? तो लोग कौन कौन आके क्या क्या काम करेंगे, उसका प्लानिंग कैसे होगा, डिजाइन कैसे होगा, और पैसे का इंतजाम कैसे होगा, इन सब चीजों की प्लानिंग। तो किसी भी जो भी फेज है आपकी लाइफ का, भले आप स्टूडेंट हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, या आप काम में हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपका बहुत प्लानिंग का है। और आपको उस प्लानिंग में बहुत कंफ्यूजन रही है। शायद आप इस चीज को कुछ टाइम से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपको कंफ्यूज कर रही है। और आपको बहुत हो सकता है आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, कि माइंडसेट जब हमारा मैच नहीं करता है अपने घर में या काम में, माइंडसेट मैच नहीं करता, तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या मनमुटाव हो सकता है। ये उसका कार्ड है। तो कुछ वो एनर्जी भी दिख रही है कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें स्मूथ नहीं है। लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, और और रिपीट में चल रही है। आपको लग रहा है कि अब यार ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये कैसे होगा। तो वो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी चीजों की, आपको समझेगा कि आपको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि लास्ट कार्ड हमारे पास लेनोमार्ट का है, द टावर, जिसका मीनिंग है थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना। आप में और आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, उसमें और अपने अपने आप में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करिए, और उसको थोड़े दूर से देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी आए। क्या होता है, विजन बदलना पड़ता है। सो जब हम टावर पे खड़े होके नीचे देखते हैं, ऊंचाई से हम जब नीचे देखते हैं, तो हमें सब कुछ बहुत एक पर्सपेक्टिव बदलता है, चीजों की डेप्थ, और उनकी क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं है, वो समझ में आता है, राइट? तो वो समझ में आना बड़ा जरूरी है डिसीजंस लेने के लिए। तो आपके ये 24 घंटे
आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, और उस डिसीजन लेने में आपको बहुत टाइम गया है उस इस प्लेस तक आने में, और काफी चीजें आपने सोची हैं, और काफी प्लानिंग कर रहे हैं आप, पर आप ये डिसीजन ले पाएंगे? थोड़ा आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा अपने आप से, और लॉजिकली कहते हैं ना, माइंड का ज्यादा यूज करिए, इमोशनल मत बनिए हर चीज को लेके। कभी कभी इमोशनल होके काम अच्छे होते हैं, और कभी कभी इमोशंस थोड़ा साइड पे रख के माइंड से सोचना पड़ता है। वही एयर की एनर्जी आई है इधर। तो अपना इंटेलिजेंस को यूज करके लॉजिकली सोचिए, और आपको आपके जवाब मिलेंगे, और वही काम आप करेंगे इन 48 घंटों में। सो दैट इज इट। ये इंफॉर्मेशन है, आ रही है मेरे पास आपके 48 आवर्स के लिए, माय डियर ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो मुझे मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो जरूर उस पर मुझे ईमेल करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 पे। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिसने भी ये ब्यूटीफुल ब्लूइश ग्रीनिश फेरी चूज करी है, ये आपकी रीडिंग है। तो आज हम पता करेंगे कि आने वाले 24 घंटे में हमारे पास क्या मेजर चेंजेस या इंफॉर्मेशन हमें स्पिरिट देना चाहती है। सो लेट्स सी। ओ वाह, दिस इज वेरी गुड, हैप्पी फैमिली। तो काफी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप लोग अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अगेन ये भी फैमिली कार्ड ही है, किंग ऑफ कप्स। और लेनोमार्ट में है हमारे पास सिकल, फिर है द की, और लास्ट में है द बेयर। सो यस, ओवरऑल काफी अच्छा टाइम जा रहा है आपके आने वाले 48 आवर्स में ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप स्पेंड कर रहे हैं, एज आई सेड, अपना फैमिली के साथ अच्छे एक अच्छी टाइम, अच्छी सेटिंग में खुशी से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लॉकडाउन है तो हम साथ में हैं, ऐसा नहीं है। आपका एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है। शायद आप लोग बीच पे जा रहे हो, क्योंकि ये पूरी फैमिली बीच पर है। तो हो सकता है आप लोगों को बीच पे जाना अच्छा लगता हो, या आप लोग कुछ कुछ छोटा सा कोई ट्रिप अपने घर से थोड़ा दूर, या कुछ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एक अच्छी बॉन्डिंग का टाइम आप बिता रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो खुश हैं आप लोग। और दूसरा कार्ड भी यही बोल रहा है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो बहुत ही वार्म और फ्रेंडली कार्ड है, बहुत ही कहते हैं ना, वो किंग है जिसका दिल बहुत बड़ा है। तो हो सकता है आप अपने सीनियर्स के साथ, सीनियर्स का मेरा मतलब है कि अगर आप यंग है तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड, उनके साथ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे फादर है, आप टीनेजर और आपका फादर के साथ या मदर के साथ, बट मोस्टली फादर, बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, या दादा या दादी के साथ, जो सीनियर है आपकी फैमिली के, उनके साथ आपका एक अच्छा, बहुत ही प्यार भरा वक्त बीत रहा है। और उनके साथ आप कौन बैठ के बात करना, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी है, एक टुगेदरनेस का फीलिंग है इस पूरे स्प्रेड में, जो बहुत खूबसूरत है। और जो लेनोमार्ट मुझे बोल रहा है वो भी यही बात बोल रहा है। जैसे आप, ये जो सिक्ल का कार्ड है, इसका मीनिंग है कि कुछ जो चीजें हमारे को डिस्टर्ब कर रही हैं, और मोस्टली आपके लिए ये फैमिली स्पेस में से रिलेटेड है, बिकॉज बाकी सारे कार्ड उसी को दर्शा रहे हैं। तो कुछ जो चीजें हो सकता है, आपस में लोगों का मनमुटाव हो परिवार के अंदर, किसी को कोई बात ना पसंद आई हो, या कोई किसी कोई कोई चीज किसी के मन के मुताबिक ना चल रही हो, तो वो डिस्कस करके उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये सिकल वो दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, जैसे ये काट रहा है, इससे हम पौधा निकाल रहे हैं। तो जो चीज, जिस चीज की उम्र हो चुकी है उसे निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कोई इशू है आप लोगों का आपस में विद द फैमिली, तो साथ बैठकर उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है, क्योंकि अब आपके पास उसकी चाबी आ गई है, राइट? ये चाबी आने का कार्ड है, मतलब आपके पास उसकी की आ गई है, कि उस दरवाजे की चाबी नहीं मिल रही थी, अब मिल गई है। तो लिटरली हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग चाबी बनवा रहे हो किसी दरवाजे की जो उनको, या डोर की जो उनको ना मिल रही हो। बट इसका साइकोलॉजिकल, इसका इमोशनल सेंस में मीनिंग ये है कि आपको एक रास्ता मिल गया है, और वो रास्ता खुला है आपस में ओपन कॉन्वर्जेशन करने से। सो मोस्टली तो ये कार्ड फैमिली का है, पर इसमें आपके फ्रेंड्स और आगे के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, राइट? किसी के साथ भी अगर आपका कुछ भी कहते हैं ना, हो सकता है मन मुटाव ना हो, बट बहुत टाइम से किसी से बात ही नहीं हुई, अब वो बात हो रही है, और वो बहुत अच्छे से हो रही है, और उसमें से आपको बहुत
हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है, बिकॉज लास्ट कार्ड इज द बियर। तो बियर इज समबडी जो इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसी बात है जो इम्पोर्टेंट है, जो वो शायद बहुत टाइम से परेशान कर रही हो और उसको ओपनली बात ना की गई हो परिवार के अंदर। वो छोटी बात भी हो सकती है, पर कभी कभी होता है छोटी सी चीज हमें बहुत तकलीफ दे सकती है, राइट। सो उसको डिस्कस करके एक बहुत ही काम एनवायरनमेंट आ रहा है। कोई मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है, कोई मुझे कहते हैं ना स्ट्रेस नहीं दिख रहा है इस कार्ड में। तो आपके ये 48 आवर्स बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं माय डियर ग्रुप नंबर 2, और खुशी से बीतने वाले हैं, तो जो भी है आप अपने परिवार से जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, या उन्होंने उनको आपसे जो डिस्कस करना है, वो खुल के डिस्कशन होगा। सो दिस इज इट। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए इतना ही कार्ड्स बता रहे हैं मुझे अभी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है मेरे साथ, तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। जिसने भी ग्रुप नंबर 3 और इस ब्यूटीफुल व्हाइट चेरब को चूज किया है, या ये आपकी रीडिंग है। सो आज हम पता कर रहे हैं कि आने वाले 48 घंटों में आपके लाइफ में कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट या होगा, या आपका वो टाइम कैसे बीतेगा। कभी कभी इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं होता है, बट क्या हो रहा है पूरे 48 आवर्स में, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं या क्या एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी। सो हमारे पास है द थिंकिंग मैन। ऑलराइट, टैरो से हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये है लेनोमार्ड के कार्ड्स, और इसमें से है पहला का है द ग्रेव, फिर है द स्टार, लास्ट कार्ड है द रिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आपके 48 घंटे काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं आप। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके बारे में आप खुद से भी बहुत सोचते रहे हैं, खुद से भी आप बहुत सोच के उस निष्कर्ष पर आ रहे हैं। और जब ये द थिंकिंग मैन का कार्ड आता है, तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, दो बातें हैं, या तो आप बहुत सोच रहे हैं, या आपने किसी की हेल्प ली है, कोई आपको हेल्प कर रहा है। द थिंकिंग मैन, इट कुड बी अ मैन, बिकॉज मैन लिखा है इधर कार्ड पे ही, बट इट कुड बी अ वुमन ऑल्सो, हो सकता है कोई भी है, बट वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने में मदद कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, और बहुत ही यू नो एक ऐसा इंसान जो एक प्रॉब्लम को हर पहलू से देख सकता है, तो उनके इंटेलिजेंस बहुत हाई रहता है इस पर्सन का, और ये आपको हेल्प कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए। और इसको आज को देख के ऐसी फील आती है जैसे कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हो, उनका जो पहनावा है, और जो उनके हाथ में एक क्रिस्टल है, आई डोंट नो क्रिस्टल है या फ्लावर है, जो भी है। सो हो सकता है आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, और क्या करें भगवान, फंस गए हैं हम लोग, पर आपको मैजिकली सोल्यूशंस मिल रहे हैं, बिकॉज ये इंसान आपको गाइड कर रहा है, या आपको और आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप खुद को भी गाइड कर सकते हैं इसमें से। आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि क्या है, और आपने खुद पे भी बहुत काम किया है, और आपको भी सोल्यूशन सामने से दिख रहे हैं, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अब। हो सकता है पहले आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हो, पर अब जब आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब आप अपने डिसीजन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आप श्योर हो कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, और चीजें आपके फेवर में जाएंगी, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड है, इनर स्ट्रेंथ, खुद को एक पावरफुल पोजीशन पे फील करना, वो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, राइट। और आपको गाइडेंस भी है, हेल्प भी है, और अब आप अब आपको मालूम है कि या अब मैं राइट ट्रैक पे हूँ। तो और इधर मुझे स्टार का कार्ड भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस, या किसी पर्सन से, या खुद की इनर गाइडेंस, दोनों हर जगह से आप सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। तो अब शुरू से देखते हैं। तो पहला कार्ड है हमारा ग्रेव। तो जब ये कार्ड आता है, तो कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ में जिनका अंत हो रहा है, उनका टाइम खत्म हो गया, और वो हमारी लाइफ से दूर जा रही हैं। तो जब ये ग्रेव का क्या मीनिंग है, जैसे सेमेट्री में किसी की डेथ पे जाके हम जाते हैं, तो उसको ग्रेव बोलते हैं। तो ये जो अंत होता है, ये जरूरी नहीं है कि हमें इससे हम बहुत खुश हैं कि ये खत्म हो गया है,
पर ये जरूरी है कि उस चीज का टाइम खत्म हो गया था आपकी लाइफ से, और ये जरूर, और इसके आने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की डेथ हो गई है, नहीं। इसका मीनिंग है कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म हो गया है। और वो सिचुएशन अच्छा था या बुरा था, वो जैसा भी था, पर अब जो आपकी लाइफ की आगे की जर्नी और ग्रोथ है, उसके लिए वो आपके लिए सही नहीं था। इसके लिए यूनिवर्स ने उस सिचुएशन को आपकी लाइफ से एंड कर दिया है, ताकि आप अपने लेसन सीख कर आगे बढ़े। अब आप आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे हमारे पास स्टार और द रिंग दोनों बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो जब स्टार की एनर्जी आती है तो इसका मीनिंग है कि इंस्पिरेशन आ रहा है, होप आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। मतलब आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को आगे देख रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि जैसे एक मेरे कंधे से बोझ उतर गया, यू नो। ये दोनों कार्ड जैसे देख के लग रहा है कि कंधे से बोझ उतर गया, अब मैं अपनी जिंदगी प्लान कर सकती हूँ अपने नजरिए से और अपनी अपनी खुशी से। और प्लानिंग में आप क्या कर रहे हैं? द रिंग का कार्ड है, तो ये कार्ड एक पार्टनरशिप भी दिखाता है, ये कार्ड एक रिलेशनशिप भी दिखाता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये कार्ड कमिटमेंट दिखा रहा है कि आप अब जो भी रास्ता आप ले रहे हैं, जिसके बारे में आप बहुत सोचा है, आपने बहुत प्लानिंग किया है और लोगों से डिस्कस भी किया है और आपको सपोर्ट और हेल्प भी मिली है, तो जो भी है आपकी लाइफ के जिस भी पहलू को ये जुड़ता हो, भले काम से लेके या अपने पर्सनल ग्रोथ से लेके, वो आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है। रिंग का मतलब है हम सीरियस है, मतलब शादी इंसान सीरियस होके ही करता है, राइट? मस्ती करने के लिए हाँ करके देखेंगे और फिर देखेंगे एक साल के बाद क्या होता है, ये थॉट प्रोसेस में कोई शादी नहीं करता है। तो जब ये रिंग का कार्ड आता है, इट्स अबाउट मैरिज। तो जब मैरिज का हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कमिट कर रहे हैं किसी चीज को, कि अब हम ये आगे आने वाले लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप कमिटेड हैं अपने पाथ पे, जो भी आपने सोचा है, और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अंदर से। और और अभी आपको डाउट्स और अपने ऊपर डाउट नहीं है कोई। सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत स्ट्रांग है, राइट? सो दिस इज इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफल, बहुत सेल्फ ग्रोथ दिख रहा है मेरा। 48 आवर्स में बहुत कुछ बदलने वाला है आप लोगों के साथ, माय डियर ग्रुप नंबर 3। या आप ऑलरेडी इस पाथ पे हैं और इन 48 घंटों में आप कंफर्म कर रहे हैं उसको सॉलिड, उसको कहते हैं ना, उसको पक्का कर रहे हैं अपने डिसीजंस को, राइट? सो दिस इज इट। ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन करना है, तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 4। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिसने भी ये खूबसूरत पिंक फेरी चूज करी है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो आज हम पता कर रहे हैं कि आने वाले 48 घंटों में क्या होने वाला है, या कुछ मेजर इवेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब देखिए क्या स्पिरिट हमें बताना चाहती है आपके आने वाले 48 आवर्स। सो लेट्स सी। ओह, वेरी ब्यूटीफुल, वी हैव 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। 7th चक्रा का कार्ड है। टैरो हमें दे रहा है द स्टार। ओके, द फिश, द चाइल्ड, ये लेनोमार्ट के कार्ड्स हैं, एंड द लिलीज। वाओ, काफी हीलिंग दिख रही है मुझे और काफी ग्रोथ दिख रही है आप लोगों के सामने जो आ रही है अब, माय डियर ग्रुप नंबर 4। क्योंकि आपका 7th चक्रा काफी एक्टिवेटेड है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको इंस्पायर, आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। कभी कभी हमें हमें दिल में हमें पता चल जाता है कि हमें किस रास्ते जाना है, और उसको इनर नोइंग बोला जाता है। पर वो होती तब है जब आपका 7th चक्र जो आपके सर के ऊपर है, सहस्रार जिसे बोला जाता है, वो चक्रा जब हम लोगों का एक्टिवेट होता है और हमारा डायरेक्टली डिवाइन के साथ कनेक्शन, मतलब कि आपके इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट, आपका गट फीलिंग, कोई भी नाम दीजिए इसको, आपका दिल की आवाज सुनना अपनी और समझना, और उस पे उसको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना, तो ये वो वाली एनर्जी है। तो जब हमें पता रहता है कि हमारा रास्ता क्या है, आ,
तो कंफ्यूजन लाइफ से खत्म हो जाते हैं सारे। सो आपकी वो एनर्जी चल रही है, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। ग्रुप नंबर 4 हो सकता है ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आने वाले 48 घंटे में आपका इंट्यूशन पावरफुल होने वाला है, बट ये जरूरी है, ये भी है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी है वो लोग बहुत इंट्यूटिव है। यू नो, साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, जो या नेचुरल गिफ्ट रहता है उनको कि इंट्यूशन उनका स्ट्रांग है, मतलब कि उनका 7th चक्रा एक्टिवेटेड है। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस, और आपको मालूम है कि आपको किधर आगे बढ़ना है अपना। ये 48 आवर्स में और ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है अपने पर्पस, लाइफ पर्पस को लेके। वाओ, बिग थिंग। लाइफ पर्पस को लेके 48 आवर्स में क्लैरिटी आने वाली है, यहाँ आ रही है ऑलरेडी, और आप उस रास्ते हैं। सो या, और स्टार भी कार्ड है होप का, एक खुशी का, अबंडेंस का। अगेन ऊपर से कहते हैं ना, भगवान हमारे को आंसर्स दे रहा है, डायरेक्टली हमारे आंसर्स दिल में आ रहे हैं, तो वो भी यही सेम एनर्जी है। तो दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है कि आपको काफी श्योरिटी है और काफी कॉन्फिडेंट है आपकी, आपको किधर आगे बढ़ना है लाइफ में। अब लेनोमार्ड हमें थोड़ी सी और डिटेल्स दे रहे हैं। तो द फिश, फिश अगेन आपके पूरे स्प्रेड में अबंडेंस तो बहुत है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं कि पैसा ही मिल रहा है, पर एक खुशी भी है चीजों को लेके। तो कुछ है जो प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए होंगे या जिसमें आपको मालूम है कि आपको बढ़ोतरी ज्यादा मिलेगी, ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, वो प्रोजेक्ट्स आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में हो सकता है आप काफी टाइम से सोच रहे हो। बिकॉज फिश के बाद हमारे पास चाइल्ड की एनर्जी है, तो यानी कि ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, पैसा कमाना और मनी रिलेटेड का कार्ड है, जिसमें ग्रोथ बहुत है। ओके, पैसे को लेके। तो ये ग्रोथ आपकी धीरे धीरे शुरू हो रही है, बिकॉज इसका नेक्स्ट कार्ड है चाइल्ड। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अब करनी शुरू कर दी हैं। अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शुरू करेंगे क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी वो धीरे धीरे ग्रो होगी। हो सकता है 48 आवर्स में कुछ शुरू करने वाले हो, या ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, पर अब वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है रिलीज। तो ये भी एक ग्रोथ का कार्ड है, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कार्ड है। तो जो भी आप शुरू कर रहे हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, राइट। और आपको मालूम है कि आपको क्या शुरू करना है, उसके लिए अब आपको बहुत क्लैरिटी है। अगर पहले नहीं थी तो आने वाले वक्त में आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है इन 48 घंटों में, 48 आवर्स में। और ये जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है काम से रिलेटेड हो सकता है आप अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अपनी ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के लिए अगर आपने मे बी कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या कुछ नया सीखने के लिए आपने स्टार्ट किया है, या आप अपना स्किल सेट को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे काम कर रहे हैं पर अब मुझे मालूम है कि ये मेरा जॉब है, पर अब मुझे इसके नेक्स्ट लेवल जाने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, तो वो स्किल्स के ऊपर आप काम करेंगे, राइट। तो कुछ है जो इंटरेस्टिंग हो रहा है और आपको अब उसकी क्लैरिटी आ रही है, और अब ये चीजें आपको आगे लाइफ में, जो ये आप डिसीजंस आप ले रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेंगे, और सही डिसीजंस जाएंगे, राइट। सो वाओ, दिस इज नाइस। गुड लक, गुड ग्रुप नंबर 4। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय फॉर नाउ।